Okay, so today we'll be starting with blood physiology. So under blood physiology, the first term that I want to introduce is hematology. Now the term hematology is concerned with the study of blood. That means hematology, we can define it as the study of blood and the related blood disorders. So hematology is the study of blood, and what all blood disorders are there are also studied under the term hematology. Now when we are concerned about physiology, under physiology we are studying everything that comes under the normal of the body, right? How body is normally functioning, what all processes are taking place in the body normally when the patient is disease free or when a particular person is disease free, right? So that is physiology. Disorders, we are studying disorders under pathology, right? So pathology is everything that is related to abnormal activity of the body. That is what is pathology. It is the study of development of the disease and the manner in which the disease develops. That is however pathogenesis. So today as we are talking of hematology, we just said that it is the study of blood and blood disorders. But in blood physiology, we will be only concerned about this section, that is blood. That means blood physiology, right? We will not be concerned about blood pathology. This refers to blood pathology, right? We are not at all concerned about blood pathology. That is in the second year. Okay, so study of blood physiology. Now hematology is very important from a clinical point of view as well, right? Why? Because as we know that hematology involves the study of blood. हेमाटोलॉजी में अपन ब्लड को पढ़ते हैं, ठीक है? ब्लड नॉर्मल कैसा है, एबनॉर्मल बिहेव कैसे करेगा फ्यूचर में, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो हेमाटोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो लेट्स अस स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ हेमाटोलॉजी. Right? The importance of hematology. Okay, so importance of hematology, or we can say why to study blood physiology, right? Because we are concerned today with blood physiology only. अब it is important to diagnose, ठीक है? जितने भी 90% जो बीमारियां हैं जो humans को होती हैं, right? 90% of the diseases which humans suffer from, they can be easily diagnosed only via blood examination. राइट? तो ब्लड एग्जामिनेशन मतलब नॉर्मली सबने ही कभी ना कभी अपनी लाइफ में ब्लड टेस्ट कराया होगा, बी इट फॉर ब्लड ग्रुप टेस्टिंग, बी इट फॉर एनी डिजीज डायग्नोसिस, ठीक है? तो सबने ब्लड टेस्ट तो आज तक आई होप कराया ही होगा, राइट? नाउ ब्लड टेस्ट और ब्लड एग्जामिनेशन रिवील्स मेनी थिंग्स. कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे कि ब्लड एग्जामिनेशन क्या क्या रिवील कर रहा है. फर्स्ट थिंग दैट इट रिवील्स इज वेदर bone marrow is functioning properly or not. Now this point, you will understand this point when we'll come to hemopoiesis और particularly erythropoiesis. जब अपन पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि bone marrow की functioning blood test से कैसे रिवील हो सकती है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, लेट्स सपोज एक पेशेंट आया है और वो सिम्टम्स दिखा रहा है थायराइड हार्मोन लेवल की फ्लक्चुएशन के, ठीक है? थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स गड़बड़ होने से वी कैन हैव वेरियस प्रॉब्लम्स. एक्सोप्थैलेमस हो सकता है, ठीक है? आई बॉल्स जो होते हैं उसकी पूरी की पूरी बाहर आ सकती है, प्रोट्यूड, दैट इज नोन एज द प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, राइट? तो वो भी हो सकता है. तो एक पेशेंट को हमने देखा और एक अंदाजे से ये सोचा गया कि इसको थायराइड लेवल्स में प्रॉब्लम हो सकती है. उसके लिए हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, राइट? तो ब्लड टेस्ट कराया अगर थायराइड लेवल्स को जानने के लिए, तो दो केसेस हो सकते हैं. या तो पेशेंट दिखाएगा, उसके ब्लड टेस्ट क्या रिवील करेगा कि थायराइड हार्मोन्स का जो पर्टिकुलर लेवल रहता है ह्यूमन ब्लड में उससे ज्यादा बढ़ रखा है, दैट इज हाइपरथायरॉइडिज्म, राइट? और क्या दिखा सकते हैं कि थायराइड हार्मोन का जो यूजुअल लेवल रहता है उससे कम है, दैट इज हाइपोथायरॉइडिज्म, राइट? सो बोथ केसेस कैन बी देयर. एंड नॉट ओनली दीज थ्री प्रॉब्लम्स, ब्लड टेस्ट से भी रिवील बहुत सारी चीजें रिवील होती हैं, ठीक है? बॉडी के अंदर क्या चल रहा है दैट इज रिवील्ड बाय ब्लड टेस्ट, ठीक है? क्योंकि एवरी व्हाटएवर वी आर गेटिंग
from the GI tract is absorbed into the blood. So what all toxins are there, they can be tested via blood examination. ठीक है, कितनी ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज कैन बी डायग्नोस्ड वाया ब्लड टेस्ट. ठीक है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ तो नहीं गया 180 से, राइट. तो there is vast importance of hematology in the clinical ground, right? So that is the importance of hematology. Now once we have understood the term hematology, now let's move to what is blood, right? So we'll first define blood, right? Okay, just blood की definition पे पहले आने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कनेक्टिव टिश्यूज, राइट. एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या है. ठीक है, या फॉरगेट कनेक्टिव टिश्यूज. व्हाट आर द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, हमारी बॉडी में 4 तरीके के बेसिक टिश्यूज होते हैं, राइट. फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, राइट. अनदर वन इज मस्कुलर टिश्यू. थर्ड वन इज connective tissue, and the fourth one is nervous tissue, right? So these are the 4 basic tissues which are present in the human body. ठीक है, इन्हीं चार के थ्रू हमारी पूरी की पूरी human body composed है, we can say, right? Now blood falls under the category of connective tissue. Blood falls under the category of connective tissue. अब connective tissue बहुत तरीके के हो सकते हैं. ठीक है, 2 most common, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. डेंस में भी हालांकि बहुत सारे टाइप्स हैं. इररेगुलर डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलती है कनेक्टिव टिश्यूज की. ब्लड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड की कंसिस्टेंसी लिक्विड जैसी है, राइट. ओके, सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट थिंग, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू which fills the heart and the blood vessels, right? अब heart और blood vessels का क्या लेना देना है blood से? In the human body there are various systems, ठीक है? Nervous system, muscular system, musculoskeletal system, cardiovascular system, pulmonary system, right? Renal system. So there are various systems in the body for a particular purpose, ठीक? वैसे ही just first erase this. वैसे ही for blood we are having cardiovascular system, right? So cardiovascular system के अंदर दो चीजें आती हैं, right? First is the heart and another thing is the blood vessels, right? अब cardiovascular system को अगर अपन बहुत ध्यान से समझें तो cardiovascular system जैसा मैंने भी बताया कि 2 चीज आ रही है, heart और blood vessels, ठीक है? heart क्या करेगा? blood, we know that 10th 11th 12th हमने इतना zoology में basic पढ़ा है that heart के अंदर blood आएगा, then heart is going to pump the blood into the whole body, right? तो blood, what it is doing, first we have discussed it is a fluid connective tissue. Second thing, it fills the heart and the blood vessels. That means हमारा जो blood है वो heart में आता है और heart में जो जितनी भी 4 खाली chambers हैं heart की उनको fill करेगा, then after that heart is going to pump that blood out into the blood vessels. So that is what I have written. It is a fluid connective tissue. Blood is a fluid connective tissue which fills the heart and the blood vessels, right? So that is the definition of blood. Now, after definition of blood, now we need to discuss properties of blood. Now properties, what are properties? First we need to discuss this word properties. Property is anything which tells everything about a substance. ठीक है, किसी भी चीज के बारे में, जैसे हम बोलते हैं ना फीचर क्या है इसका, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, राइट? What is its characteristics? तो वैसे ही properties of blood we are going to discuss, and this discussion of properties of blood is going to reveal many things about blood. ठीक है? Okay, so the first property of blood is its color. Right, everything can be. The first property of blood is its color. Now the color of blood is red. Okay, so blood is rather I can say red in color, but not always you will find it pure red. ठीक है? अब थोड़ा पहले आते हैं ब्लड वेसल्स की बात करते हैं. जैसे हमने अभी बात करी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, कार्डियो स्टैंड्स फॉर द हार्ट एंड वैस्कुलर स्टैंड्स फॉर द ब्लड वेसल्स. अभी ब्लड वेसल्स अगर हम बहुत मोटी डिवीजन लें ऊपर से,
तो ये दो में है, दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन्स, राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो आर्टरी में सर्कुलेट करता है, तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। वेन्स में रहता है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, तो आई कैन से इसमें सर्कुलेट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो कलर इस हिसाब से भी वेरी करता है। तो अगर मैं कलर की बात करूं आर्टीरियल सिस्टम में और वीनस सिस्टम में, राइट, आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम में अगर अपन कलर की बात करें तो आर्टीरियल सिस्टम में क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट्स व्हाई आर्टीरियल सिस्टम में देयर इज रेड ब्लड, ठीक है, पूरा का पूरा जो ब्लड है वो अच्छे से रेड कलर का दिखाई पड़ता है, राइट। यहीं पर अगर अपन वीनस सिस्टम की बात करें, राइट, इन द वीनस सिस्टम बिकॉज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो, राइट, the blood is deoxygenated, the carbon dioxide concentration is higher, the blood appears bluish red, or in some textbooks you may find it written purplish red. That is also right and this is also right, okay, bluish, purplish, they are all in the same shade, okay. So that is color of blood. So what is the conclusion or discussion of color of blood? That the color of blood can vary according to the oxygen concentration. So this is a very important point. The color of blood varies depending upon the oxygen concentration, right? तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंड करता है हमारा कलर ऑफ ब्लड, दैट इज वन थिंग. So that is the first property of blood. Then the second property of blood is volume. Right, volume of blood. हमारी बॉडी में कितना ब्लड की वॉल्यूम है, कितना ब्लड है एक्चुअली एक अडल्ट की बॉडी में, राइट. सो इन ह्यूमन बॉडी, लेट्स सपोज एक अडल्ट की अगर अपन बॉडी में देख रहे हैं, राइट, एक अडल्ट की बॉडी में यूजुअली जो अमाउंट ऑफ ब्लड मिलता है दैट इज 5 to 6 लीटर्स, दैट इज 5 to 6 लीटर्स. अब अडल्ट्स में भी वेरी करता है अगर वो एक मेल है और अगर वो एक फीमेल है, राइट. दिस साइन इज फॉर मेल्स एंड दिस वन इज फॉर फीमेल्स. सो मेल्स में इट इज अराउंड 5 to 5.5 लीटर्स एंड फीमेल्स में इट इज अराउंड 4 to 4.5 लीटर्स, राइट. नंबर्स जो कैलकुलेशन है वो वेरी कर सकती है हर टेक्स्ट बुक में, राइट. बट अगर वो ये लिख रहे हैं 4.5 to 5.5, ठीक है, मेल्स में, और हमने यहाँ पे लिखा है 5 to 5.5, that thing is like insignificant, that doesn't hold any importance. Okay, so that is volume. Now adults में वॉल्यूम हमने देख ली कि 5 से 5.5 मेल्स में हो सकती है, 4 से 4.5 फीमेल्स में हो सकती है. What about newborn baby, right? So in a newborn, whether it is male or whether it's female, the amount of blood will be 450 to 600 ml. Right? Don't write liters, it is ml. ठीक है, liters can practically not be accommodated in the body of human size. Okay? तो हमने दो प्रॉपर्टीज की बात करी, कलर और वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम भी हमने देख लिया. The next property that we are going to discuss is specific gravity. Before specific gravity, let's take into account another property of blood, that is its pH, right? Now on the pH scale, if I just draw the pH scale here, we know that if this is 7, then this side will be acidic and this side will be somewhat basic. So that means 7 I can say is neutral. Now the pH of blood circulates on the basic side, right? That means it is somewhat this side. यहाँ पे, if this is 8, let's say this is 8, then the pH of blood circulates in this manner, right? It is 7 to 8. Now the pH of blood also varies, ठीक है, on the concentration. अगर मैं एक आर्टरी में बात करूं, अगर मैं एक वेन में बात करूं, तो जो हमारी pH है ब्लड की वो वेरी करेगी. In the arterial system, again, because the oxygen concentration is high, there is the presence of oxygenated blood in the arterial system, and the pH of blood is somewhat slightly alkaline. The pH becomes slightly alkaline, right? That means in arterial system the pH it varies from 7.2 to 7.6. That means it is slightly alkaline,
not neutral and not purely basic, slightly alkaline, slightly basic we can say. In venous system, because the oxygen concentration is less, the blood, we have written that whole of the concept here also, that the blood is deoxygenated in the venous system. तो क्योंकि वेन्स में ऑक्सीजन का लेवल कम है, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है. एंड इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, फ्यूचर में जब अपन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हमको समझ आएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में पानी के साथ मिलकर एक एसिड की फॉर्मेशन करती है, दैट इज कार्बोनिक एसिड, राइट, दैट इज कार्बोनिक एसिड. क्योंकि एसिड की फॉर्मेशन हुई है ब्लड में, दैट मींस द पीएच विल ऑलवेज ऑब्वियसली शिफ्ट टू द एसिडिक साइड. सो इन venous blood, because the amount of oxygen is less, the pH becomes slightly acidic. That means from 6 to 7, and I shall write here 6.2 to 6.7, slightly acidic. So again, the pH of blood also varies. The pH of blood also varies depending upon the concentration of oxygen in the blood. So pH of blood varies according to the, or depending upon, let me write depending upon oxygen concentration of blood, right? When the oxygen concentration increases as in arterial blood, the pH becomes slightly alkaline. I have written the range 7.2 to 7.6. And in venous blood, when the oxygen concentration decreases, it becomes slightly acidic, and I have written the value, that is 6.2 to 6.7. So this is how the pH of the blood keeps on circulating between this is 6, between 6 to 8. Right? It is never neutral. The pH of blood is never neutral. You cannot say blood is a neutral fluid. So that is about the pH. Now we are done with color, with volume, with pH. Now let's come to the specific gravity of blood. Let me use this also. Now let's come to specific gravity of blood. Specific gravity. Now this is again very important. Specific gravity, अगर हम चलो ब्लड को छोड़ देते हैं, किसी भी रैंडम अगर किसी भी चीज की अपन बात कर रहे हैं, फिजिक्स, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? स्पेसिफिक ग्रेविटी तो फिजिक्स में हमने पढ़ी होगी. स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली इज रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, अगर मेरे को लेट्स सपोज किसी एक्स सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो लेट्स सपोज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. मतलब मैंने क्या करा है, सब्सटेंस एक्स की डेंसिटी को कंपेयर करा है एक रेफरेंस लेके, और मैंने रेफरेंस किसके लिए है? डेंसिटी ऑफ वाटर. सो दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये बेसिकली ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज ओनली व्हेन एक्स इज अ फ्लूइड. ठीक है, अगर वो चीज एक फ्लूइड है, फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए अपन वाटर को रेफरेंस में लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग ऑफ अ फ्लूइड. ओके, सो दैट्स व्हाई the specific gravity of blood will be, so the specific gravity of blood will be equal to the density, or density is represented by the symbol rho. So density of blood upon the density of water, right? And this is equal to 1.502 and can vary to 1.063. Somewhat in this range, specific gravity of blood will be there. Okay. I'm not talking about the specific gravity of RBCs, not of plasma. I am talking about the specific gravity of blood. Okay. Now viscosity को अगर अपन डेली हिंदी में जो हम वर्ड यूज करते हैं विस्कोसिटी की जगह, दैट इज गाढ़ापन. कौन सी चीज कितनी गाढ़ी है, कौन सा लिक्विड कितना हैवी है, दैट इज बेसिकली विस्कोसिटी. अब ब्लड की विस्कोसिटी जानने से पहले एक और चीज,
विस्कोसिटी, यूनिवर्स में जितने भी फ्लूइड्स हैं, दुनिया में जितने भी फ्लूइड्स हैं, उन सब की विस्कोसिटी अपन मेजर करते हैं टेकिंग इन रेफरेंस द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। वाटर की विस्कोसिटी को रेफरेंस में रख के मेजर करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। एक है लिक्विड एक्स, इसकी मेरे को विस्कोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी विस्कोसिटी 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स ग्रेटर देन द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर, मैंने बोला ना, कंपेयर करते हैं वाटर के साथ, वाटर को रेफरेंस में लेके चलते हैं विस्कोसिटी जब अपन को मेजर करनी होती है, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग, विस्कोसिटी को समझने का एक अच्छा तरीका है टेकिंग द कंपैरिजन ऑफ हनी एंड वाटर, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज अ स्लैब, दिस इज अ स्लैब, और फॉरगेट स्लैब, ये एक फ्लोर है। इस फ्लोर पर सबसे पहले मैंने इस पॉइंट पे, इधर ए पॉइंट पे मैंने पानी गिराया, तो ये पानी इतनी दूर तक फैला, ठीक है। फिर मैंने इसी पॉइंट पर शहद गिराया, ठीक है। ऑन द सेम पॉइंट आई हैव ड्रॉप्ड हनी ऑल्सो, और वो शहद सिर्फ इतना रहेगा। क्यों? बिकॉज हनी कंपैरेटिवली एक ज्यादा भारी फ्लूइड है इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर को जरा सा स्पिल करो वो दूर तक जाएगा, लेकिन हनी को अगर हम अपन स्पिल करें तो वो इधर तक ही जा रहा है, ठीक है। दिस इज विस्कोसिटी, कौन सा लिक्विड कितना भारी है। तो ब्लड की विस्कोसिटी इज बेसिकली, ब्लड इज 5 टाइम्स more viscous than water. Okay, so here we complete all the properties of blood. Let's take a quick recap of what all properties we have studied. The first property that we mentioned was color of blood. कलर ऑफ ब्लड किस पे वेरी कर रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो कलर कैसा रहेगा? रेड रहेगा। अगर तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो जो हमारा कलर है ब्लड का वो भी चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम ब्लूइश रेड। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी दैट वी डिस्कस वाज आई थिंक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ब्लड में अडल्ट्स में रहेगी 5 से 6 लीटर, यही अगर अपन अडल्ट मेल्स की बात करें तो उसमें रहेगी 5 to 5.5 लीटर के अराउंड ही वेरी करती मिलेगी, और इन फीमेल्स इट विल बी 4 to 4.5 लीटर्स, right? In newborn baby we discussed it is 450 to 600 ml, right? Then after that we discussed specific gravity. Okay, specific gravity, we discussed specific gravity is the ratio of density of blood and the density of water, ठीक है, and that comes out to be 1.052 to 1.063, ठीक है। Again the values in various textbooks they may vary but range यही रहेगी। okay, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज कौन सा लिक्विड कितना भारी है, सो दैट इज ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिमेनिंग इज पीएच। तो पीएच भी वेरी करती है कि ब्लड आर्टीरियल है या ब्लड वीनस है। अगर तो आर्टीरियल ब्लड है मतलब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो पीएच कैसी रहेगी? स्लाइटली बेसिक रहेगी, ठीक है, मतलब 7.2 to 7.6 तक सर्कुलेट कर सकती है। और यहीं पर अगर अपन बात करते हैं उस ब्लड की जो कि वीनस है, दैट मींस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कहीं ना कहीं थोड़ी कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड परफॉर्म्स दिस रिएक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसको, कि CO2 ब्लड में मिलके ब्लड में जो वाटर है उसके साथ मिलके क्या बना देती है? कार्बोनिक एसिड बना देती है। बिकॉज एसिड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, सो वी से दैट द ब्लड इज गेटिंग स्लाइटली एसिडिक। तो पीएच भी उस हिसाब से शिफ्ट हो जाती है 6.2 to 6.7 अराउंड। सो हियर वी हैव डन द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड, अब ये एक प्रैक्टिकल चीज है, राइट? तो इसको अपन प्रैक्टिकली ही समझेंगे। लेट्स सपोज आई हैव अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, आई एम हैविंग अ टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने किसी का ब्लड लिया 100 ml, राइट? वील कीप द कंसेंट्रेशन इन माइंड 100 ml, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गेम होगा वो 100 ml ब्लड के साथ ही हम खेल रहे हैं, ओके। तो मैंने 100 ml ब्लड निकाला किसी भी एक पर्सन का, और इसको मैंने इस टेस्ट ट्यूब में भरा, ठीक है, आई फिल्ड इट हियर। ओके, जस्ट प्लीज ऐड द पॉइंट इन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। अपन ने डिस्कस करा था ना कलर ऑफ ब्लड, तो उसमें वी टॉक्ड ऑफ कि आर्टेरियल ब्लड में ये हो सकता है, वीनस ब्लड में ये हो सकता है। तो प्लीज कीप इन माइंड
जो ब्लड का रेड कलर है दैट इज गिवन टू इट बाय द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट? दैट्स अ वेरी जनरल थिंग, तो वो वहां पे ऐड कर लेना अगर लिखा हो तो कहीं। ओके, तो दैट इज, हाँ, 100 ml ब्लड मैंने एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करा है, दिस इज द 100 ml मार्क, ठीक है। अब मैंने इस ब्लड में कोई केमिकल ऐड नहीं करा, मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम, और जब मैंने इसको थोड़े टाइम के बाद देखा, सो आफ्टर सम टाइम जब मैंने इसको देखा, सो द ब्लड वाज अरेंज्ड इन लेयर्स। तो इस तरीके की कोई टेस्ट ट्यूब है और ब्लड लेयर्स में अरेंज हो गया, ठीक है। सबसे नीचे लेयर बनी एक, उसके ऊपर एक लेयर बनी, एंड वन लेयर वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो वी कैन सी ब्लड हमारा 3 लेयर्स में अरेंज हो चुका है, सबसे ऊपर वाली, बीच वाली और सबसे नीचे वाली। सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसमें सारे के सारे आरबीसीज हैं, ठीक है। बीच वाली जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं बफी कोट। क्या बोलते हैं अपन उसको? बफी कोट, राइट। और जो नीचे वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर है, दैट इज बेसिकली प्लाज्मा। अभी अपन ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड नहीं देखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अपन कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे, एंड आफ्टर दैट विल अगेन कम टू सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर सर्टेन क्लिनिकल रीजंस, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लाज्मा, बफी कोट एंड आरबीसीज, आई जस्ट वांट टू illustrate this diagram that in this RBCs make up a total of 43 to 47%, Buffy coat is 2 to 3%, and plasma is in the most highest concentration, that is 55 to 57%, right? So just keep this diagram in your minds, because when we'll come to कंपोजिशन ऑफ ब्लड, उसको पूरा कंपोजिशन ऑफ ब्लड को पूरा करने के बाद दोबारा अपन इस डायग्राम पे आके कुछ बात करेंगे। क्लिनिकली मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, विल बी टॉकिंग ऑफ दिस। नाउ विल कम टू कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ओके, सो बिफोर कमिंग टू कंपोजिशन ऑफ ब्लड, व्हाट हैव वी स्टडीड इन सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड, दैट बेसिकली एक 100 ml की टेस्ट ट्यूब में अपन ने 100 ml ब्लड डाला, और वो ब्लड थोड़े टाइम बाद उसको सेटल रख दिया, उसको बॉटल को शेक में कुछ नहीं करा, उसको सेटल कर दिया एक जगह पर, फिक्स कर दिया। और थोड़े टाइम बाद जब अपन ने उसको देखा तो उसमें क्या देखने को मिलता है, वो 3 लेयर्स में अरेंज हो गया। सबसे ऊपर वाली प्लाज्मा, बीच वाली बफी कोट, एंड लास्ट वन वाज द आरबीसी, राइट। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्लड, दैट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। Now in composition of blood we have 2. ब्लड जो है बेसिकली 2 चीजों से बना हुआ है, ठीक है। पहली है प्लाज्मा, दैट मेक्स अप अ टोटल ऑफ write it here. First is plasma, right, which is 55%, and another is the formed elements, which are 45%, ठीक है। तो 2 चीजों से हमारा ब्लड बना हुआ है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा इज 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स दे आर 45%। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ 92% वाटर, तो प्लाज्मा में 92% तो वाटर है, और बाकी के 8% सॉलिड सॉल्यूट्स है, ठीक है। 8% सॉलिड सॉल्यूट्स आर देयर। यही अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखें तो उसमें एज सच कोई डिवीजन नहीं है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में वी हैव 3 थिंग्स, वी हैव आरबीसीज, वी हैव डब्ल्यूबीसीज, वी हैव प्लेटलेट्स, राइट। वी हैव आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, and the alternative name for platelets is not megakaryocytes. I have found in certain textbooks, or I have seen in certain textbooks, it is written that platelets are also known as megakaryocytes. It is wrong. Platelets are not also known as megakaryocytes. Megakaryocytes are basically larger cells जिनको काट काट कर प्लेटलेट्स बनाई जाती हैं बोन मैरो द्वारा,
राइट? तो प्लेटलेट्स आर नॉट मेगा कैरियोसाइट, प्लेटलेट्स आर रादर fragments of megakaryocytes, right? So they are fragments of megakaryocytes. प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, they are not actual cells, ठीक है? They are fragments of the cells. अगर मैं समझाना चाहूँ तो this is a megakaryocyte. Let's suppose this is a megakaryocyte. ये megakaryocyte इस तरीके से बहुत टूट जाता है, ठीक है? तो इसमें से जो एक एक फ्रेगमेंट निकलता है इस तरीके से, ये these are platelets, right? तो इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है? So that is about formed elements. Now solid solutes. Water में तो 92% water, तो मतलब मेजर अगर अपन देखें ब्लड प्लाज्मा का बना, और प्लाज्मा ज्यादातर वाटर का बना हुआ है. Now in these 8% solutes we have three things, right? Okay, not three things, only two things. Organic solutes and inorganic solutes. ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. ऑर्गेनिक सॉल्यूट ज्यादा रहते हैं, इनऑर्गेनिक कम है, ठीक है? इन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स वी आर हैविंग थ्री. फर्स्ट वी हैव प्रोटीन्स, देन वी हैव नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस, राइट? एंड देन वी हैव other substances, right? Now in proteins, whenever we are concerned about proteins, so major proteins जो हमें देखने को मिलते हैं प्लाज्मा में, they are albumin, globulin, right? They are fibrinogen, and the last one is prothrombin, right? तो मेजर और भी प्रोटीन्स हैं, these are the major four proteins that are included in proteins in the plasma. Now non protein substances, ठीक है? non protein substances में we have urea, we have uric acid, ठीक है? xanthine, hypoxanthine, you have urea, uric acid, xanthine, hypoxanthine. Basically urea is the human waste, ठीक है? human में जितनी भी waste produce हो जाती है, majorly, you know, in 11th and 12th you must have studied that humans, they are uricotelic organisms. Sorry, not uricotelic, ureotelic organisms. Why are humans ureotelic organisms? क्योंकि major waste जो हमारी body बनाती है, that is urea, right? And uric acid, थोड़े amount में uric acid भी produce होता है, but majorly uric acid is produced in birds. So we say that birds, they are uricotelic organisms. Birds are uricotelic organisms. मतलब उनमें उनका जो major waste है, that is uric acid. Also along with uric acid, xanthine is also produced and hypoxanthine is also produced. तो uricotelic organisms में आ जाती हैं birds, ठीक है? ureotelic है humans. Now as because we are only concerned with medical physiology, we have nothing to do with zoology anymore. तो humans में थोड़ी थोड़ी waste, urea, uric acid, xanthine, hypoxanthine, and also we have creatine and creatinine, right? There are two different words, creatine and creatinine. These are muscle waste, ठीक है? muscle contraction के बाद जो waste generate करती है, जो waste देती है blood में, they are creatine and creatinine, okay? Then other substances और blood में क्या होता है? important glucose होगा, ठीक है? fat होंगे, triglycerides, right? okay, so और other amino acids, ठीक है? amino acids भी देखने को मिलेंगे. This double A stands for amino acids. Okay. Now we come to inorganic solutes. Inorganic solutes blood में दो तरीके के हो सकते हैं. Cations कौन से होते हैं? जो positively charged particles हैं. So they can be cations, positively charged particles, and anions, negatively charged particles. Anions में आ जाएंगे हमारे पास bicarbonate, सबसे ज्यादा most common anion found in blood, sulfate, phosphate, chlorine. Positive charge particles में आ सकते हैं potassium, sodium, calcium, magnesium, right, etc.
तो दिस इज द बेसिक कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो विल जस्ट नाउ टेक अ रिकैप ऑफ कंपोजिशन। तो ब्लड बेसिकली किन किन चीजों का बना है? दो चीजों का बना है। 55% प्लाज्मा है उसमें, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 है। दीज आर ऑल सेल्स, मतलब सेलुलर कैटेगरी में ही आते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ओके। अब इनकी एक बार काउंट देख लेते हैं। आरबीसीज हमारे ब्लड में they are 4.5 to 5.5 lakhs per 100 ml of blood। हर 100 ml ब्लड में इतने आरबीसीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर वी कैन 100 ml को छोड़ के वी कैन से पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, दैट इज 100 ml ओनली। डब्ल्यूबीसी की अगर काउंट देखें तो दिस इज ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, राइट। काउंट आई एम राइटिंग विद ब्लू कलर। डब्ल्यूबीसी काउंट इज 8000 to 10000 पर 100 ml ऑफ ब्लड, राइट। और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की जो काउंट है दैट इज 1 to 1.5 lakhs अगेन पर 100 ml ऑफ ब्लड। नाउ दैट्स अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नाउ प्लाज्मा 55% प्लाज्मा है बॉडी हमारे जो ब्लड में। अब इसमें से 8% सॉलिड सॉल्यूट्स का बना हुआ है और 92% इसमें पानी है। 8% सॉल्यूट्स में से we can say 5 to 6% ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है और बाकी जितना भी बचा वो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में दो तरीके के हैं। we can have cations, positively charged particles, we can have anions, negatively charged particles। cations में है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। anions में है बाइकार्बोनेट, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन एंड क्लोरीन। इन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स 3 हैं, प्रोटीन्स, नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। ये प्रोटीन नहीं है लेकिन इन मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन अटैच रहता है, ठीक है। दे आर नॉट प्रोटीन्स, और यहाँ पे प्रोटीन है तो मतलब नाइट्रोजन तो अटैच होगा ही, ठीक है। रिमेंबर अ कंसेप्ट, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनके पास नाइट्रोजन होती है। रिमेंबर अमीनो एसिड के पास एक अमीन ग्रुप होता है, अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स याद होगा। सो दिस इज कार्बोजाइल ग्रुप, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। दिस इज H, दिस इज NH2, यहाँ पे आ गया हमारा नाइट्रोजन, और ये है R। R इज नॉट अ केमिस्ट्री एलिमेंट। R मतलब कुछ भी, H लगा दो, OH लगा दो, ठीक है। R कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन R क्या है। वी कैन हैव वेरियस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, टायरोसिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, सेरीन, बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। बेसिकली 21 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। नाउ दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, और बहुत सारे अमीनो एसिड ग्रुपों भी क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। नाउ इन प्रोटीन्स, मतलब हर प्रोटीन में दैट मींस नाइट्रोजन ग्रुप होगा। इन एवरी प्रोटीन देयर इज गोइंग टू बी अ नाइट्रोजन ग्रुप, बिकॉज बहुत सारे अमीनो एसिड ही मिलके प्रोटीन बनाते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोटीन में नाइट्रोजनस ग्रुप तो होगा। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मींस कि लेट्स सपोज कार्बोजाइल ग्रुप हमने हटा दिया तो इट इज नॉट अमीनो एसिड नाउ, और यहाँ पे कार्बन लगा दिया, नाउ इज दिस अमीनो एसिड? दिस इज नॉट अमीनो एसिड। तो ऐसे अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ग्रुप हो जाएं, दिस इज एग्जांपल, ऐसे अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ग्रुप हो जाएं तो दे विल फॉर्म नॉन प्रोटीन बट नाइट्रोजनस सब्सटेंस, बिकॉज नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, राइट। सो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस भी आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में, प्रोटीन्स भी और अदर सब्सटेंसेस भी। प्रोटीन्स में भी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन होता है। नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस में यूरिया, यूरिक एसिड, xanthine, हाइपोxanthine, क्रेटीन, क्रेटिनिन, सबसे ज्यादा यूरिया होता है, बिकॉज ह्यूमंस आर यूरियोटिलिक। Other substances we can have glucose, triglycerides, other amino acids, right? Again, सबसे ज्यादा glucose. So that is the composition of blood. Now, after composition of blood, let's come to the centrifugation part that we talked about. So now let's come to the centrifugation part that we talked about. Now in the centrifugation, when we did the centrifugation of blood, तो ultimately हमारे पास उस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या कलेक्ट हुआ था? सबसे पहले we had 3 layers, right? उन 3 लेयर्स में से सबसे नीचे क्या थी? आरबीसी की लेयर। क्यों आरबीसी की लेयर आई? क्योंकि आरबीसी सबसे भारी है, इसलिए आरबीसी सारे नीचे आ गए टेस्ट ट्यूब में, राइट? तो यहाँ पे आरबीसी। नाउ बिकॉज यू अंडरस्टैंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इट विल बी
more clear to you the centrifugation. इसमें आ रहा है Buffy coat, right? And the topmost layer is formed by plasma, right? And in between we have got the Buffy coat. Now plasma, it means ये सब कुछ आ रहा है उसमें, right? Everything is included. Buffy coat में we have WBCs and platelets in the Buffy coat, and there are RBCs. Now why it is termed as Buffy coat? क्योंकि कहीं ना कहीं जब अपन सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो बीच वाली लेयर looks like a मतलब blurred appearance रहती है, धुंधली दिखती है वो. That's why Buffy coat we have termed, right? Now Buffy coat is clinically very important, right? In certain cases जब अपन ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, एक पेशेंट से ब्लड लिया, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करी, तो अपन देखते हैं बफी कोट में कुछ एबनॉर्मल, नॉर्मली क्या मिलना चाहिए, WBC प्लेटलेट्स, ठीक है, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल तरीके के सेल्स भी देखने को मिलते हैं. एग्जांपल इज LE सेल्स. LE सेल्स देखने को मिलते हैं बफी कोट में इन अ डिजीज दैट इज सिस्टमिक लपस एरिथमेटोसस. इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. क्या है ये? ऑटो इम्यून, मतलब अपना ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना देता है हमारे ऑर्गन्स के खिलाफ. किडनी हो गई, लिवर हो गया, स्टमक हो गई, मतलब अपने ऑर्गन्स के खिलाफ. इन दिस सिस्टमिक लपस एरिथमेटोसस हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, दैट इज गोइंग टू जनरेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, राइट? अपनी ही ऑर्गन्स के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर देता है. तो उस कंडीशन में LE cells are formed in the blood और वो सेंट्रीफ्यूगेशन में देखने को मिलते हैं. So this is an important clinical correlation. Now we are done with centrifugation of blood as well. The last topic is serum. So what is serum? Before telling you serum, I shall tell you that these fibrinogen and prothrombin, they are clotting factors. Now what are clotting factors? क्लॉटिंग फैक्टर्स आर द फैक्टर्स जो जब अपन को कोई इंसिजन लगती है, कोई भी कट लगा, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग रोकने में जो हेल्प करते हैं, दे आर क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट? नाउ वंस क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर, दिस मतलब प्लाज्मा में हमको क्लॉटिंग फैक्टर्स देखने को मिलते हैं. सिर्फ प्लाज्मा की बात करूंगा अभी मैं. लेट्स सपोज क्लॉटिंग फैक्टर्स में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, नॉट ओनली दीस टू, देयर आर अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर. क्रिसमस फैक्टर हो गया, हैगमैन्स फैक्टर्स हो गए, वेरियस, विल बी स्टडीइंग दैट लेटर. अभी इन सब क्लॉटिंग फैक्टर्स को मैंने हटा दिया, राइट? दैट मींस I am saying that plasma is devoid of clotting factors. मतलब plasma minus clotting factors. So plasma minus clotting factors, what we get is known as serum, right? So serum is basically plasma minus clotting factors. That is what is serum. Okay? Now we'll try to understand serum in detail. Now we'll move to serum. So we just now talked about कि अगर अपन प्लाज्मा से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दे तो जो लिक्विड बचेगा वो सीरम है. We are not talking about formed elements. ब्लड में सिर्फ प्लाज्मा की बात हो रही है. So serum is plasma without clotting factors, right? So serum is basically plasma without clotting factors. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली इसका कलर जो है ना वो yellowish दिखता है. It is yellowish in color, right? Now we'll come to its importance. Now first we need to know कि सीरम एज सच इसके अंदर है क्या क्या, राइट? तो प्लाज्मा में से मैंने क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए. क्या क्या बचा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, सारी वेस्ट, यूरिया, क्रेटिनिन, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, एवरीथिंग इज देयर. ग्लूकोज, फैट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स भी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट? दैट मींस मैं बोल सकता हूं सीरम को इट इज न्यूट्रिशियस, राइट? इट इज अ येलोइश न्यूट्रिशियस फ्लूइड, ठीक है, पहली चीज. अब इसकी जो इंपॉर्टेंस अपन पढ़ेंगे वो इसी बेसिस पे. अच्छा, पहली इंपॉर्टेंस, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस में इसका बहुत बड़ा रोल है. दैट मींस मैंने बताया था जैसे बफी कोट में किन्हीं किन्हीं बीमारियों में स्पेशल टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, वैसे किन्हीं किन्हीं बीमारियों में सीरम एग्जामिनेशन भी होती है. क्या होती है? सीरम एग्जामिनेशन भी अपन करते हैं, ठीक है? तो सीरम एग्जामिनेशन से भी कहीं ना कहीं बहुत चीजें पता लगती है ब्लड के बारे में, ठीक है? तो वही बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में काम आता है, राइट? इट इज यूजफुल इन बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस. सेकेंड,
अगर मेरे को किसी भी ऑर्गेनिज्म के, कोई भी एनिमल है, उसका मैंने एक सेल लिया, ठीक है, उस सेल को मल्टीप्लाई कराना है लैब में, मतलब लैब में उस एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनाने हैं, मतलब एक सेल का कल्चर बनाना है, सेल कल्चर, ठीक है, लैब में। तो उस टाइम पे भी मैं सीरम को यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि सीरम बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, इसमें हर वो एक चीज है जो एक सेल को मल्टीप्लाई होने के लिए चाहिए, ठीक है। तो इट इज यूज्ड व्हेन सेल culture, it is used in cell culture prepared in vitro मतलब labs में, test tube, vitro मतलब you must have heard about this, IVF, in vitro fertilization, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी की फॉर्मेशन, एक ओवम लेना और एक स्पर्म लेना और दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराना, ठीक है, तो दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वैसे ही अगर हम सेल्स को टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा रहे हैं, लैब में ग्रो करा रहे हैं, दैट इज इन विट्रो, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सेल कल्चर इन विट्रो, ठीक है, और सेल कल्चर प्रिपेयर्ड इन विट्रो। थर्ड, अगर ह्यूमन सेल्स को ग्रो कराना है तो कोई भी नॉर्मल सीरम नहीं लगेगा। अगर ह्यूमन सेल्स को ग्रो कराना है लैब में तो वी नीड फीटल काफ सीरम। फीटल काफ सीरम इज यूज्ड फॉर ह्यूमन सेल कल्चर prepared in vitro, right? तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी सीरम की। और so today we have discussed about what is hematology, we have discussed about what is blood, we discussed the properties of blood, पांच properties अपन ने डिस्कस करी। After that we discussed centrifugation, then we discussed composition of blood, and the last topic was serum, right? So the next session will be taking on functions of blood and plasma proteins.